اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بھٹی فورٹ منرو کہانی قسط نمبر 7 لے کر حاضر خدمت ہے. آئیے ملاحظہ فرمائیں. اب ہم سبمٹ پارک، کریمن پہاڑی اور ڈیمس ہیل سے ہو کر ڈیمس باغ کی طرف جائیں گے اور تقریباً فورٹ منرو میں کسی پہاڑی کے اوپر یہی جگہیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں. اس کے گرد و نواح میں ایک دو یہ علاقے ہیں، لیکن وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر واقع ہیں. اس وقت ہم جھیل کے کنارے کنارے ہوتے ہوئے واپس جا رہے ہیں. پہلے ہم راستے میں کسی ہوٹل پر پیٹ پوجا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ڈیمس باغ میں گلو شہوانی صاحب کی طرف آ جائیں گے. تو جناب اس وقت ہم فل فریش ہو کر اور تازہ دم ہو کر واپس ڈیمس باغ کی طرف جا رہے ہیں. وہ شکوہ کرتے رہے، ہم ان کو سمجھاتے رہے. وہ شکوہ کرتے رہے، ہم ان کو سمجھاتے رہے. نہ وہ ہماری مانے نہ ہم انہیں سمجھا سکے. تو روٹھ گیا مجھے اس کا ملال نہیں. تو روٹھ گیا مجھے اس کا ملال نہیں. دکھ تو اس بات کا ہے کہ تو سمجھ نہ سکا. دکھ تو اس بات کا ہے کہ تو سمجھ نہ سکا. مادر کے ساتھ تازہ ترین آمد ہوئی تو وہ میں نے عرض بیان کر دی. اس وقت ہم شاعری کرتے کرتے ڈیمس باغ کے سامنے پہنچ چکے ہیں. ڈیمس باغ کے سامنے ایک چھوٹا سا گیٹ لگا ہوا ہے. گیٹ کے اندر 4 بڑے اسٹیپ بنے ہوئے ہیں. باغ کافی نیچے ہے. باغ کے مختلف پورشن بنے ہوئے ہیں. یہ ایک سرکاری باغ ہے. اس باغ کو ایک انگریز کے نام پر رکھا گیا ہے جس کا نام ڈیمس تھا. اسی وجہ سے اس کو ڈیمس باغ کہا جاتا ہے. باغ میں مختلف اقسام کے پھولوں اور پھلوں کے پودے لگائے گئے ہیں. یہاں پر سروں کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں. ساری ٹیم تتر بتر ہو گئی. کسی کو کسی کی خبر نہ رہی. مختار صاحب وما کیمرے ہمارے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں. گلو صاحب نے بتایا کہ یہاں پر ناشپاتی، خوبانی، سیب، انار اور سرو وغیرہ کے درخت لگے ہوئے ہیں. اس باغ کو پانی کی سپلائی ڈیمس جھیل سے ہی مہیا کی جاتی ہے. باغ کے اندر انتہائی خوبصورت پھول پودے لگائے گئے ہیں. میں ساتھ کے ساتھ یہاں پر فورٹ منرو کی تھوڑی سی تاریخ بیان کرنا بھی آسان ضروری سمجھتا ہوں. عرض بیان کچھ یوں ہیں. 1880 عیسوی میں ڈویژن کے انگریز کمشنر مسٹر منرو نے فورٹ منرو کے موسم اور ماحول سے متاثر ہو کر لیا ڈویژن کو ہیڈ کوارٹر بنا دیا. اس وقت ڈیرہ غازی خان لیا میں شامل تھا.
1886 में मिनरू ने डेरा गाजी खां से लेकर फोर्ट मिनरू तक 85 किलोमीटर सड़क तामीर करवाई, जिसे बाद में बलूचिस्तान तक बढ़ा दिया गया। मिस्टर मिनरू ने इसकी तरक्की और तोसी के लिए अहम किरदार अदा किया। फोर्ट मिनरू गंजी पहाड़ी के सामने बनाया गया। गंजी पहाड़ी नवाब ऑफ बावलपुर की मलकियत है। पहले ये पहाड़ी वीरान और बंजर हुआ करती थी। अब दूर से ही ये पहाड़ी अपने अंदर खूबसूरती लिए नज़र आती है। यूँ तो फोर्ट मिनरू की बुलंदी 6470 फीट है, मगर गंजी पहाड़ी इससे भी कई सौ फीट बुलंद है। फोर्ट मिनरू के रहन सहन को देखते हुए अंग्रेज़ों ने जिरगा सिस्टम राइज किया। ये जिरगा सिस्टम पंचायती की एक तर्ज है। ये वही जिरगा हाल है जहाँ पर हम गुज़र के गए हैं। इसमें एक बड़ा खूबसूरत हाल है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कबीलों के लोग इकट्ठे होकर फ़ैसला करते हैं। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जिरगा सिस्टम ख़त्म हो गया, मगर कुछ लोग दिली तौर पर इस फैसले को पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि शहरी अदालती निज़ाम उनकी पहुंच से बाहर है। हर वक्त कबायली इलाका से निकलकर मैदानी इलाका तक जाना और वकला की फ़ीस और दूसरे अखराजात इनकी बस से बाहर हैं। यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग इकट्ठे होकर फ़ैसला करते हैं जो इंसाफ पर मबनी होता है। अगर मुल्ज़िम ने जुर्म किया है तो सज़ा मिलेगी, वरना नहीं। इसके बरक्स अदालती फ़ैसलों से वो मुतमईन नहीं। शायद इसी वजह से जिरगा हाल बंद है। फोर्ट मिनरू का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवा जिसमें नई ताज़गी पैदा कर रही है। वैसे भी फोर्ट मिनरू का मौसम गर्मियों में इंतहाई खुशगवार होता है। जब डेरा गाजी खां में 120 फ़ारेनहाइट होता है तो इस वक्त फोर्ट मिनरू का दर्जा हरारत 90 दर्जे से ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर काफ़ी तादाद में सरकारी दफातर के रेस्ट हाउस बने हुए। महकमा हाउसिंग ने 329 प्लाटों पर मुश्तमिल एक हाउसिंग कॉलोनी बनाई है। इसके अलावा शहजादों, मकामी लोगों, सियासतदानों, रऊसा और दूसरे लोगों ने आलीशान घर भी बनाए हुए हैं। सामने पहाड़ी पर कदीम तर्ज का डीसी हाउस भी बना हुआ है और इंतज़ामिया की रहाइश गाहें भी हैं। डिप्टी कमिश्नर हाउस के बड़े दरवाजे पर अब भी मिनरू हाउस लिखा हुआ है। इसके साथ ईसाइयों का एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, मगर अब लोहे के जंगले लगाकर उसे महफूज कर दिया गया है। फोर्ट मिनरू में पिछले कई सालों से हर साल 14 अगस्त के मौका पर जश्न मनाया जाता है, जो जश्न फोर्ट मिनरू के नाम से याद किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाकों के लोगों के अलावा मैदानी इलाकों से भी काफ़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। इस जश्न में महफिल मौसीकी, इलाकाई रक़्स, निशानाबाजी, पहाड़ी जानवरों की नुमाइश और दीगर तफरीहात का इनेकाद किया जाता है, मगर कुछ अरसे से ये जश्न नहीं मनाया जाता। पहले यहाँ पर जश्न की वजह से लोग 8-10 महीनों की कमाई इकट्ठी कर लेते थे, मगर अब वो इससे महरूम है। यहाँ पर पूरे साल में सिर्फ एक ही यही जश्न मनाया जाता था, जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार के साथ साथ तफरीह दोनों मुयस्सर आ जाते थे। फोर्ट मिनरू के पहाड़ों में कई खूंखार जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें चीता, पहाड़ी बिच्छू, हिरन, सांप, भेड़िया वगैरह शामिल है। मगर वो फोर्ट मिनरू पहाड़ों में नहीं बल्कि मज़ाफ़ाती इलाकों के आसपास है, जिनकी तादाद इंतहाई कम है। पहले यहाँ के लोग गरीब हों या अमीर अपने कानों पर राइफ़ल लटकाए फिरते थे, मगर अब गवर्नमेंट की सख्ती की वजह से कमो बेश ये चीज़ नज़र आती है। खुशी के मौका पर ये लोग राइफ़ल से बेशुमार फायर करके अपनी खुशी का इज़हार करते हैं। फोर्ट मिनरू में खुशी के मौके पर काक लांदी और सज्जी भी तैयार की जाती है। काक को तैयार करने के लिए गेंद के साइज़ के गोल पत्थर पर गूंदा हुआ आटा उसके इर्द गिर्द लगा दिया जाता है। फिर उसे दहकते हुए अंगारों में रखकर बैरूनी तपिश से काक को सेक दिया जाता है। जब काक पककर तैयार हो जाता है तो उसे तोड़कर पत्थर को अलग कर दिया जाता है और गर्म काक को कहवा, सब्ज़ चाय
या किसी भी सालन से खाया जाता है। लांदी भी इनकी इंतहाई मरगूब ग़िज़ा है जो सर्दियों में तैयार की जाती है। साले दुम्बे या बकरे में से अंदरूनी अज़ा निकाल कर गोश्त को पानी से साफ़ किया जाता है, फिर उसको नमक लगाकर कुछ दिनों के लिए धूप में लटका दिया जाता है। इसको गर्द गुबार और मक्खी वगैरह से बचाने के लिए एक बारीक कपड़ा लपेट दिया जाता है। सख्त सर्दियों में ठंड होने की वजह से गोश्त सूख जाता है। इस खुश्क गोश्त को लांदी कहा जाता है। फिर इसे किसी सब्ज़ी में पकाया जाता है। खाने में इंतहाई लजीज होता है। पहले वक्त में लांदी पकाने का आम रिवाज होता था, मगर अब शदीद मेहनत और तवील इंतज़ार की वजह से लोग इसे कम ही तैयार करते हैं। सजी इनकी इंतहाई दिलपसंद ग़िज़ा है। बकरे या दुम्बे के गोश्त में नमक लगाकर इसे लोहे की सलाख में पिरो दिया जाता है और गोश्त के नीचे दहकते हुए अंगारे रखे जाते हैं जिनमें आग और धुआं शामिल ना हो। फिर इन अंगारों की तपिश से गोश्त को तैयार किया जाता है। सब्जी तैयार करने के लिए गोश्त को सलाख पर फेरना पड़ता है ताकि चारों तरफ से पक जाए और ठीक तरह से तपिश पहुँचे। यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने भरपूर सीज़न के होते हैं। दूरों नज़दीक से आए हुए लोग इन महीनों में खूब इंजॉय करते हैं। जुलाई अगस्त के महीनों में बारिश अपने जुबन पर होती है। यहाँ के तमाम नदी नाले अपनी आबोताब के साथ रमा दमा हो जाते हैं। गोया कि इनमें ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ जाती है। जनवरी फरवरी में तकरीबन हर साल बर्फ़बारी होती है जिससे इस वादी के हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। फोर्ट मिंटो के मशरक़ी जानिब एक तंग रास्ता पहाड़ों में से निकल रहा है जो सीधा चोटी ज़ेरी और चोटी बाला जो कि डेरा गाजी खां के मज़ाफ़ाती इलाके हैं की तरफ जाता है। पहले लोग इसी रास्ते से चलकर आते जाते थे। ये इनके लिए शॉर्टकट रास्ता भी था। यहाँ के लोग मेला सखी सरवर, वैसाखी या कदमों का मेला में शिरकत करने के लिए इन पहाड़ों से उतरकर 65 किलोमीटर पैदल सफ़र करते थे और वहाँ जाकर ये लोग निशानाबाजी, लोक रक़्स और कई दीगर मशागिल पेश करके रोज़गार कमाते थे। पहले भी यहाँ पर रोज़गार का मसला काफ़ी गंभीर था और अब भी ये मसला वैसा ही है। फोर्ट मिंटो का ज़्यादातर इलाका बंजर वीरान पड़ा हुआ है। सतह समंदर से बुलंदी की वजह से यहाँ के लोग फेफड़ों और टीबी वगैरह जैसे मुज़ी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ के लोगों की अक्सरियत तंगी माश में मुब्तला है। ये दुनिया भी एक आजमाइश है, स्टेज है जहाँ पर हर एक्टर अपना अपना किरदार अदा करके चला जाता है। क्या पता है क्या खोता है वो जानता है या अल्लाह की ज़ात, मगर अक्सरियत इस दुनिया के फ़रेब में फंस जाते हैं। आज दीन हमसे कुर्बानी मांगता है, अज़ल से कुर्बानी मांगी और अब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, मगर हम दीन के लिए किसी तरह भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं। मुसलमान हर जगह पिस रहा है, मगलूब हो रहा है। हम जान सकते हैं क्यों, हमें पता है, मगर हमने जानबूझकर कबूतर की तरह आँखें बंद कर रखी हैं। मगर याद रहे, इस तरह कभी कौमों में इनकलाब नहीं आता जब तक अमली तौर पर कुछ न किया जाए। आज हम मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मन हमारे घर की तरफ आँख नहीं उठा सकता। हमें इस तरफ हर हाल में ध्यान देना होगा, वरना ज़िल्लत व पस्ती हमारी मुंतज़िर खड़ी है। खैर, इन्हीं ख्यालों में चलते फिरते हमने पूरे डैमिस बाग का दौरा भी कर लिया और यहाँ पर जितने भी फूलों की अक़साम उन्होंने बाग में लगाई थी वो भी आपको दिखा दी और फलों वगैरह के दरख्त भी आपको दिखा दिए। इस वक्त हम बाग की तह बतह सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बाग से बाहर की तरफ आ रहे हैं। बज़ाहिर बाग देखने में बहुत छोटा लगता था, मगर जब हम बाग के अंदर दाखिल हुए और स्टेप बाय स्टेप जब हम बाग के नीचे उतरे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बाग कितना वसी है। बाग के गिर्द घूमने से
اب ہمیں کافی تھکان محسوس ہو رہی ہے. اس وقت ہم باغ سے نکل کر ڈیمس جھیل کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں اور واپس اپنے منڈولوں کی طرف آ رہے ہیں. اس وقت یہ ڈیمس جھیل کا آخری نظارہ ہے جو انتہائی دل فریب اور خوبصورت لگ رہا ہے. شاہوانی صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں نہ صرف معلومات فراہم کی بلکہ ڈیمس جھیل اور ڈیمس باغ بھی خوب پھرایا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.